Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today also I got many answers, and the answers are very, very close to the perfect answer. I am very happy. The learning process is going on very well. So the first question was deposit. Deposit in a bank means when customer places his money with the bank in any of the account. Normally these accounts are classified into two parts: demand deposits and term/time deposits. Demand deposits are the deposits where customer can withdraw the money anytime, and these are called saving account and current account. Term deposit or time deposit is a term given to those type of deposit where money is available for a specific period, like fixed deposit or recurring deposit. Traditionally, the interest rate in term deposits are higher than demand deposits, and that's why for bank, higher demand deposits are always preferable. Next is Demat account. When a customer holds his or her financial assets in electronic form, it is called Demat account. These can be shares, these can be debentures, these can be other assets also. Any financial assets held in electronic form is called Demat. And these Demat accounts are maintained with depository. The next term is dishonor of check. Dishonor means not honoring the check, and not honoring means not making the payment of the check. So whenever check is presented to the bank can make the payment or can deny the payment. And what can be reasons for that? First reason can be insufficient fund. Balance is not available in account, or balance is not arranged for. Second, there can be some defect in check. Check may be stale. Third, payment is stopped by the drawer. So there can be various reasons that may tantamount to non-honoring of check, and this is called dishonor of check. Then e-banking. E-banking is another name of online banking. When customer is doing banking transaction or transfer of funds from one account to another or making other electronic transactions, it is called e-banking. This can be through NEFT, RTGS, AIMS, mobile banking, internet banking, through ATM. These are all various forms of e-banking. EFT stands for electronic fund transfer. When funds are transferred from one person to another person through electronic mode, it is called ETF. So I am happy you are learning the terms with so ease, and gradually you will be very, very knowledgeable as far as banking is concerned. For current affairs, I have suggested you a very good source. The link of this source is available in description. Click the link, you will land up on an app. Download the app and take this year plan and apply coupon code AA03. You will get 10% discount and have access to excellent material in current affairs. Maintenance of good health. If we are healthy, we can achieve anything. So how we can be healthy? These priceless videos are placed in a playlist. Watch these videos, implement these ideas in your habit and stay healthy. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. मुझे खुशी है कि हमारे सब्सक्राइबर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लर्निंग सेशंस में बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक नॉलेज के लिए. आंसर आपके दिन प्रतिदिन बेहतरीन होते जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी प्रदान कर रहे हैं. आज के हमारे शब्द हैं. पहला शब्द है डिपॉजिट. डिपॉजिट का मतलब है जब कोई भी ग्राहक अपने पैसे बैंक के पास जमा करता है, इसको हम जमा राशि या डिपॉजिट बोलते हैं. ये पैसा वो बैंक के डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स में रख सकता है और उसकी नेचर ऑफ अकाउंट की तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं. एक कहलाते हैं डिमांड डिपॉजिट, मीन्स मांग जमा राशियाँ, और दूसरी कहलाती है टर्म और टाइम डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं मियादी जमा राशियाँ.
जो मांग जमा राशियां होती हैं उसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आता है, बचत खाता और चालू खाता, और टर्म और टाइम डिपॉजिट्स के अंदर आता है एफडी और आरडी, मियादी जमा राशियां या आवर्ती जमा राशियां, रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक के लिए सेविंग और करंट अकाउंट ज़्यादा सूटेबल होते हैं क्योंकि ब्याज कम देना पड़ता है, और एफडी और आरडी में ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। डीमैट, डीमैट का अर्थ है अगर कोई कस्टमर अपनी फाइनेंशियल एसेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करता है उसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। अब ये फाइनेंशियल एसेट शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, और भी कोई फाइनेंशियल एसेट हो सकती है, और जहां पर इसको मेंटेन किया जाता है उसको डिपॉजिटरी कहते हैं। तो डीमैट अकाउंट मींस एक डीमैटेरियलाइज शेप के अंदर अपने फाइनेंशियल एसेट्स को रखना। फिर है डिसऑनर ऑफ चेक, चेक की वापसी, चेक की अदायगी ना करना। ऑनर का मतलब होता है पेमेंट करना, डिसऑनर का मतलब होता है पेमेंट ना करना। तो चेक बैंक के पास पेमेंट के लिए पेश होता है। अब बैंक इसकी पेमेंट कर सकता है और मना भी कर सकता है। किन मौकों पर वो इसकी अदायगी मना कर सकता है ये लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। पहला, उसके अकाउंट में बैलेंस का ना होना। दूसरा, चेक में कोई डिफेक्ट्स होना, चेक के अंदर किसी तरह की कमियां हैं, या चेक स्टेल है, डेट निकल गई है उसकी, या जो अकाउंट होल्डर है उसने स्टॉप पेमेंट करा दी है उसकी। तो ये कई ऐसी अवस्थाएं होंगी जिसके अंदर चेक की वापसी की जाएगी, डिसऑनर किया जाएगा, उसकी अदायगी नहीं की जाएगी राशि की। इसको हम डिसऑनर ऑफ चेक बोलते हैं। फिर ई बैंकिंग, ई बैंकिंग एक शब्द है जो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कस्टमर अपने आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकिंग करता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स करता है, उसको हम ई बैंकिंग बोलते हैं। ये एनईएफटी हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, ईम्स हो सकता है, मोबाइल बैंकिंग हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है, एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो सकता है। मींस ब्रांच में आके पर्सनल इंटरवेंशन के बिना जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जाती हैं उनको हम ई बैंकिंग कैटेगरी में लेते हैं। ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अगर पैसे का रेमिटेंस या पैसे का प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जा रहा है उसको हम ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं। अब इस तरीके से आपकी डेली नॉलेज बढ़ रही है। करंट अफेयर की नॉलेज के लिए मैंने आपको बेहतरीन सोर्स बताया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस साल का प्लान आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर कूपन कोड AA03 जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा और बेहतरीन सोर्स करंट अफेयर का आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार अच्छी सेहत मेंटेन करना हम सबके लिए जरूरी है। खाने पीने में क्या क्या परिवर्तन करें कि हम एक अच्छी सेहत मेंटेन कर सके, ये सेलेक्टेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। इनको देखिए, इनको अपने जीवन में ढालिए और स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।